leasing and other form of debt finance, and public and private equity instruments. Means long term finance means those finance which is related to over 1 year maturity period. So the term of the financing reflects the risk sharing contract between providers and users of finance. Long term finance shifts risk to the providers because they have to bear the fluctuations in the probability of default and other changing conditions in financial markets, such as interest rate risk. So long term finance is very important for an organization because every company wants capital to operate the business effectively. So long term finance help to operating a business or non operating business. So second is nature of financial decisions. The financial decision is a crucial decision that is to be made by the financial manager. The decision is about the financing mix of an organization. Financing decision is focused on the borrowing and allocation of fund required for the investment decisions of the firm. So a few specific points in this regards are financial decisions are taken by a finance manager alone or in conjunction with his other management colleagues of the enterprise. बेसिकली आप देखेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजन चीफ फाइनेंस मैनेजर का डिसीजन होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे अपने कॉलीग को भी इन्वॉल्व करते हैं बिकॉज प्लानिंग की एक टीम होती है जो ये प्लान करती है कि कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है और उसे कहां से रेज किया जाएगा. So B point is a finance manager is responsible to handle all such problems as involve financial matters. फाइनेंस मैनेजर जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनको हैंडल करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो फाइनेंस मैनेजर का रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन because how to raise capital through long term or short term, how to raise capital in short term, it is a crucial decision for a finance manager. The entire gamut of financial decisions can be classified in three broad categories: investment decision, financing decision, and dividend decision. These all decisions are interrelated each other. So I explain financial decision, financing decision. Financial decision is the utmost important decision which is to be made by business individuals. These are wise decisions indeed that are to be chalked out with proper analysis. He decides when, where, and how should the business acquire the fund. An organization's increase in share is not only a sign of development of the firm, but also to boost the investor's wealth. Highlights of financing decisions are as follows. Questions of making financing decisions arises as soon as decision regarding investment outlets is made. At times, investment decisions follow financing decisions.
A finance manager has to decide the appropriate mix of debt and equity in such a way that wealth of the shareholders is maximized. Means there are two ways to raise the capital of a company. First is called debt capital, second is called equity capital. Debt capital is an instrument to help to raise the capital of the company. It has a fixed rate of interest and definite period, like debenture, bonds, long-term loans, etc. ये जितने भी फंड आप देख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल से रिलेटेड फंड है, उसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होगा. कंपनी हैज to pay fixed interest at any cost, whether your company earns a profit or not. And second hand आप देखेंगे, other hand, equity capital. तो equity is a owner's fund. It has a voting right. बट इसमें आप देखेंगे कि इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी कंपनी के ऊपर नहीं होती है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर इज अ ओनर ऑफ द कंपनी. सो कंपनी को जब प्रॉफिट अर्न होता है तभी डिविडेंड पे करेगा, अदरवाइज डिविडेंड पे नहीं करेगा. अब ये डिसाइड करना होता है, क्रूशियल डिसीजन है कि कंपनी को डेट कैपिटल के थ्रू कैपिटल को रेज करना है या कंपनी को इक्विटी के थ्रू कैपिटल को रेज करना है. इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. A finance manager is supposed to delve into the following issues requiring financing decision. First, from which source are funds available? Second one is to what extent are funds available from this source? What is the cost of fund presently used? What is the expected cost of future financing? Next one is what instruments should be employed to raise funds and at what time? Next one is should firm approach financial institutions for securing funds? What will be the term and conditions on which the funds will be raised from different sources? What will be the nature of underwriting sources, underwriting agreement? What innovations can be made in raising funds from wide variety of sources? So long term फंड को रेज करने के लिए आपके पास बेसिकली दो ही सोर्स है, एक इक्विटी कैपिटल और दूसरा है डेट कैपिटल. कंपनी डिवेंचर इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है और इक्विटी इशू कर सकती है लॉन्ग टर्म फंड के लिए. इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड को रेज कर सकती है लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू. सो दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजंस. नेक्स्ट डिसीजन is investment decision. It is also a very difficult decision for a finance manager, also known as the capital budgeting decision. A company's asset and resources are very rare and thus must be put to use with much analysis. So investment decision involve long-term decision as well as short-term investment decision. Both decisions are included in investment decision. So a firm should pick those investment where he can gain the highest conceivable returns. Mostly finance manager के पास एक ये क्वेश्चन होता है कि where to invest. आपके पास फंड अवेलेबल है लेकिन उसे कहां पे इन्वेस्ट करना है. इसका सिंपल आंसर है आप
वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न आए और मिनिमम रिस्क हो। हर एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैक्सिमम रिटर्न उसको आए, जो भी फंड उसने इन्वेस्ट किया है, और रिटर्न उसका मैक्सिमम हो और रिस्क मिनिमम हो। So investment decisions involves careful selection of the assets where funds will be invested by the corporates. The salient features of investment decisions are: first is the investment decision are of two types. I have already discussed long-term investment decisions and short-term investment decision. Long-term investment decision is also called capital budgeting decision, and short-term investment decision is related to working capital management. I have already discussed in previous class the subject working capital management. Second, long-term investment decisions decides about the allocation of capital to investment projects whose benefits accrue in the long run. It is concerned with deciding first what capital expenditure should the firm make. Capital expenditure means long term जो expenses होता है, जो more than 1 year होता है, that is also called capital expenditure, जिससे आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. दिस ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. What volume of funds should be committed? How should funds be allocated as among different investment opportunities? Short-term investment decisions decides about allocation of fund as among cash and equivalents, receivables and inventories. A firm may have a number of profitable investment proposals in hand, but owing to paucity of funds, finance managers should be meticulous in choosing the most profitable one. Thirst of financial decision is on building suitable asset mix. So investment decision is very important decision for the business enterprises. थोड़ी सी भी गलती बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको हार्म कर सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए लॉस को जनरेट कर सकती है, इवन आपकी कंपनी लिक्विडेट तक हो सकती है, कोलैप्स्ड हो सकती है. So investment decision is a crucial decision for a finance manager. How to raise fund, how to raise long-term fund, how to raise short-term fund. So third decisions are dividend decisions, relate to the distribution of profit that are earned by the organization. The main criteria in this decision are whether to distribute to the shareholders or to retain the earnings. Dividend decisions are affected by the earnings of the business, dependency on earnings. So dividend decision is taken by the top management of the company. जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर करती है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब टैक्सेशन पे कर देती है, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर होता है. बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर इज अ ओनर ऑफ अ कंपनी, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा बियर करता है. रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट: equity shareholder is always unsecured. Unsecured means at the time of liquidation of the company आपको सबसे लास्ट में पेमेंट होगा. तो एक रिस्क तो इक्विटी शेयर के लिए वहां पे जनरेट हो गया. दूसरा आप देखेंगे कि कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तभी डिविडेंड पे करती है, अदरवाइज आपको डिविडेंड पे नहीं करेगी.
और आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिस्क्राइब रहता है। सो इक्विटी शेयर होल्डर को ओनर ऑफ द कंपनी इसीलिए बोला जाता है कि वो रिस्क ज्यादा बियर करता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया उसके बाद जो टैक्स पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है कंपनी में, उस पे पूरा राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। बट टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि उस प्रॉफिट में से कितना पार्ट डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर किया जाए और कितने पार्ट को कंपनी के लिए रिटेन कर लिया जाए। दैट इज आल्सो कॉल्ड रिटेन अर्निंग। मींस प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने कंपनी के लिए रोक लिया है इंटरनल कैपिटल को जनरेट करने के लिए। तो डिविडेंड डिसीजन जो आपका डिसीजन है वो काफी क्रूशियल डिसीजन है, बिकॉज अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर का फंड रोकेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कम पे करेंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर क्वेश्चन अराइज जरूर करेगा कि आपने उनका डिविडेंड क्यों रोका है। सो वहां पे टॉप मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसने रिटेन क्यों किया है, उसके प्रॉफिट को क्यों अपनी कंपनी में रोका है। So next topic is profit maximization and wealth maximization. You can see on the screen, profit maximization is the process by which a business arranges its prices and cost structure to achieve the highest possible profit. The central goal of the organization is to increase its profit. So first of all, I would like to discuss the objective of financial management. Objective of financial management में फर्स्ट आप देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकेंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो what is profit maximization and what is wealth maximization and what is the basic difference between profit maximization and wealth maximization? So कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, तो मोर टू मोर प्रॉफिट अर्न करना उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करेगा। लेकिन प्रॉफिट अर्न करने में आप लीगल प्रैक्टिसेस को इग्नोर कर देते हैं। आप जानते हैं जितने भी इनपुट्स कंपनी को मिलती है वो सोसाइटी के थ्रू मिलती है, लाइक लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा, और आप उसको प्रोसेस के थ्रू फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली वो सोसाइटी को आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो मोर टू मोर प्रॉफिट अर्न करने का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इट इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, नॉट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, बिकॉज कोई भी कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मेन ऑब्जेक्टिव रख के नहीं चल सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए वो सरवाइव नहीं कर सकती है, बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लॉइटेशन को इन्वॉल्व करता है। एक्सप्लॉइटेशन मींस रॉ मटेरियल का एक्सप्लॉइटेशन, पब्लिक का एक्सप्लॉइटेशन। आपने रेट काफी हाई रख दिया है, कस्टमर से काफी ज्यादा हाई रेट आप कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो हो रहा है बट सोसाइटी में आपका गुडविल रेज नहीं हो पा रहा है, बल्कि आपका एडवर्स सिचुएशन पे जा रहा है, आपका गुडविल हार्म हो रहा है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप करें, ये मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। हर कोई चाहता है कि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करे, बट वो प्रैक्टिस लीगल होनी चाहिए, एज पर रूल्स होनी चाहिए, नॉर्म्स होनी चाहिए। इसका केस स्टडी आप नेस्ले का मैगी नूडल्स का देख सकते हैं। मैगी के रैपर पे लिखा था नो एमएसजी, नो मोनोसल्फेट ग्लूटामेट, इट इज आल्सो कॉल्ड अजीनोमोटो।
जो कि एक टेस्ट इनहेंसर है, टेस्ट को इनहेंस कर देता है, बट उसका साइड इफेक्ट ये है कि मेंटल डिसऑर्डरिंग का सबसे बड़ा रीजन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनको इसको कोट किया है कि जो मोनोसल्फेट ग्लूटामेट है वो काफी डेंजर है और ये मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, निगेटिवली अफेक्ट करता है। सो जब लेबोरेटरी टेस्ट हुआ मैगी का जो मसाला था उसका लेबोरेटरी टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसमें एमएसजी इन्वॉल्व है, मोनोसल्फेट ग्लूटामेट, जो कि टेस्ट इनहेंसर है, बट वो मेंटली काफी ज्यादा डिसऑर्डरिंग का कारण बनता है, मेंटल डिसऑर्डरिंग का रीजन बनता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत जितने भी मैगी का प्रोडक्ट था सबको डंपिंग करवाया गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया से मंगाकर उसको खत्म किया गया। दैट मीन्स ह्यूज लॉस, कंपनी को ह्यूज लॉस वहां पे बियर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि टेस्ट इनहांस करने के लिए उसको लोगों को एडिक्शन में शामिल करने के लिए, आदत में शामिल करने के लिए आपने उसके टेस्ट में थोड़ा इनहांस करने के लिए उसमें एक गलत केमिकल को यूज किया। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप लीगल वे पे करेंगे तो ज्यादा बेटर है, और ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, बल्कि आप चूंकि सोसाइटी में स्टैब्लिश है, सोसाइटी से सारा इनपुट आप ले रहे हैं, देन सोसाइटी के लिए आपको वेलफेयर करना होगा, सोसाइटी को कहीं ना कहीं आपको उसके लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करना होगा। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, और कोई भी कंपनी आज के डेट में इस ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं चल सकती है, नहीं सरवाइव कर सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। सो सेकंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो एवरी कंपनी has want to maximize the wealth in present scenario. So wealth maximization is the concept of increasing the value of a business in order to enhance the value of the share held by its stockholders. This may involve additional investment in intellectual property and a strategic positioning, as well as attention to managing the risk profile of a business. So wealth maximization is also include profit maximization as well as corporate social responsibilities, CSR. हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो उसे एज पर रूल्स, एज पर नॉर्म्स करनी चाहिए, क्योंकि जितना भी उसने इनपुट लिया है अपनी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए वो सब सोसाइटी से लिया है, तो अल्टीमेटली सोसाइटी को आपको बेनिफिट करना होगा। तो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को लेकर आप नहीं चल सकते हैं, आपको साथ ही साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 में ये मैंडेटरी हो गया है कि हर एक कंपनी को अब CSR फंड जनरेट करना होगा, क्रिएट करना होगा। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसमें पीछे रह जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस जो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, चाहे वेदर लीगल प्रैक्टिस और लीगल प्रैक्टिस। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन is very important for the business in present scenario. अगर सिंगल लाइनर में इसको हम डिफाइन करना चाहें तो द इंक्रीमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यानी कंपनी के इक्विटी शेयर में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, मार्केट में उसका इंक्रीज हो रहा है शेयर प्राइस, तो अल्टीमेटली हम समझेंगे कि कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। एक कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, लाइक SBI की मैं बात करता हूं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम को रन कर रहा है सोसाइटी में। सो आप एक एग्जाम्पल लें कि आप बहुत प्यासे हैं और रास्ते में जा रहे हैं, गर्मी के दिन है और आपको पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वहां पे आपको एक वेंडर मिल रहा है, वाटर वेंडर है वहां पे, और चिल्ड काफी वाटर है,
और आप वहां पे पानी पीते हैं और रिलैक्स होके बैठ भी जाते हैं। लेकिन वो जो वेंडर लगा हुआ है, वाटर वेंडर, जहां पे आरओ वाटर और चिल्ड वाटर आप पी रहे हैं पानी, वो एसबीआई के थ्रू प्रोवाइडेड है, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड के थ्रू उसको क्रिएट किया गया है। दैट मीन्स कि आपने पानी पिया, आपकी प्यास बुझी, आप सेटिस्फाई हो गए, आप वहां रिलैक्स हो गए, फिर भी आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एसबीआई द्वारा क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया सीएसआर फंड से। शो कस्टमर के माइंड में एक गुडविल क्रिएट होगा, एक गुडविल जनरेट होगा कि नहीं, एसबीआई सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमा रही है, बल्कि वो सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड कर रही है, सोसाइटल बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो वहां पे जैसे ही आप कस्टमर के माइंड में गुडविल क्रिएट होता है, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, वो आपके साथ जुड़ना चाहता है। कभी भी अगर उसे बैंक अकाउंट ओपन करवाना रहेगा तो वो एसबीआई के बारे में जरूर एक बार सोचेगा। और इस तरह से एसबीआई ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्टिव करके वो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट किया, और जितने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होंगे, उतना प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट आप ज्यादा अर्न करेंगे। और प्रॉफिट अर्न करेंगे तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड पे कर पाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। अब जितना इक्विटी शेयर होल्डर को आप ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे, अदर इन्वेस्टर आपकी कंपनी की ओर अट्रैक्ट होगा और आपकी कंपनी का इक्विटी शेयर का डिमांड करेगा। और आपको पता है कि जितना ज्यादा डिमांड होता है इक्विटी शेयर का, आप उतना ही ज्यादा उसका प्राइस मार्केट में हाइक करेगा। तो द इंक्रीमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इट इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सो आज के डेट में कोई भी कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ओर मूव नहीं कर रही है, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की ओर मूव कर रही है, बिकॉज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन is include profit maximization as well as corporate social responsibility। और इसके थ्रू वो अपने इक्विटी शेयर को इंक्रीज कर रहा है, उसके मार्केट वैल्यू के इंक्रीज कर रहा है। दैट इज आल्सो कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। So third point on the screen is the essential difference between the maximization of profits and the maximization of wealth is that the profits focus is on short-term earnings, while the wealth focus is on increasing the overall value of the business entity over time. So it is wealth maximization is a long-term objective and profit maximization is a short-term objective. So next topic in this unit are cardinal principles of financial decisions. So this decision includes some principle. I'm going to discuss first strategic principles. A strategic principle means according to this principle, financial decision of a firm should be tethered to the overall corporate objectives and strategy. Second one is optimization principle. Thrust of financial decisions should be on intensive use of available funds, and for that purpose, proper balance between fixed and working capital should be sought. That means optimization means it is related to capital structure, better capital structure. And capital structure is the mix of debt, equity, and other sources of finance. So this concept is related to optimization of capital structure. How much debt, how much equity involved in your capital structure, that's matter. So एक कंपनी के लिए डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, उसका बैलेंसिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। जो आपकी कंपनी को बेटर अर्निंग पर शेयर प्रोवाइड करे, वही ऑप्टिमाइजेशन लेवल होता है।
कैपिटल स्ट्रक्चर का, डेट इक्विटी का, फिक्स प्रोपोर्शनल. सो थर्ड वन इज रिस्क रिटर्न प्रिंसिपल. Maintaining suitable balance between risk and return is the crux of financial decision making. Given the product market strategy, return and risk are the function of decision relating to size of the firm, kinds of assets to be acquired, types of funds to be employed, extent of funds to be kept in liquid form, etc. So next principle is marginal principle. According to this principle, a firm should continue to operate up to the point where its marginal revenue is just equal to its marginal cost. What is marginal cost? That cost which is incurred for additional 1 unit of the production. प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर आप एक यूनिट को इंक्रीज करते हैं और उस एक यूनिट के इंक्रीज के कारण जो कॉस्ट इनकर हुआ, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सुटेबिलिटी प्रिंसिपल. फोकस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज ऑन क्रिएटिंग एन एसेट बाय अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी. Next one is flexibility principle. According to this principle, financial plan of a firm should be capable to being changed in sync with changing environment. Darwinism, you know very well about Darwinism theory. सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी. चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं तो मार्केट में सरवाइव करेंगे, अदरवाइज आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे. सो मार्केट सिचुएशन या मार्केट कंडीशन जैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है. अगर आप उसके साथ नहीं चल पाएंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप एक साथ नहीं मिला पाएंगे अपने आप को, तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे. तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल यही बोलता है कि जो एनवायरनमेंट में चेंजिंग हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो भी फाइनेंसिंग डिसीजन है उसमें आपको चेंज कर लेना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये डिसीजन लेना चाहिए. एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि अभी आपने मान लो आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो दैट मींस आपने अपना पैसा जहां इन्वेस्ट किया है, आप अपने बैंक में पैसा जमा करते होंगे, फिक्स डिपॉजिट, करेंट सेविंग अकाउंट्स में पैसा होगा, कहीं आपने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया होगा, कहीं आपने डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया होगा. अगर आपको मार्केट सिचुएशन ऐसा लग रहा है आगे के दिनों में कि अगर डिवेंचर का मार्केट ठीक नहीं रहेगा, इक्विटी शेयर का मार्केट अच्छा रहेगा, तो आप डिवेंचर को वहां से स्किप कर दीजिए, वहां से विथड्रॉ कर लीजिए पैसा और इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए. दैट मींस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो. एंड व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज. So flexibility principle is a very important principle and it is under cardinal principle of financial decisions. Next principle, timing principle. Timing should be crucial consideration in financial decisions. Investment and financing decisions should be taken at a time that enable the organization to seize market opportunities and minimize cost of raising fund. So time factor is very essential for financial decision. So financial decisions में आपने यहाँ पे 3 डिसीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने जाना. एक फाइनेंशियल डिसीजन हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया और तीसरा डिविडेंड डिसीजन हो गया. These all decisions are interrelated. How?
अगर आपका फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली रिलेटेड टू एस्टिमेशन ऑफ फंड एंड फाइंड आउट द इफेक्टिव सोर्सेस ऑफ फंड। आप फंड का एस्टिमेशन करते हैं और उस फंड के एस्टिमेशन को कहां से आप रेज करेंगे, उन सोर्स के बारे में आपको पता करना है। दैट फंक्शन इज कॉल्ड फाइनेंसिंग फंक्शन। So there are so many sources to raise the fund: long-term fund, short-term fund, long-term loan, equity, debenture, etc. तो एक फाइनेंस मैनेजर के लिए ये जरूरी रहता है कि आप फंड को कहां से क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स वहीं से आप फंड को क्रिएट करेंगे जहां से चीप एंड बेस्ट होगा, सस्ता और अच्छा। अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बताना चाहें आपको कि अगर आपको इंडिविजुअल को कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की जरूरत होती है, तो सबसे चीप एंड बेस्ट सोर्स आपके पेरेंट्स नजर आते हैं। क्योंकि पेरेंट्स से जब आप पैसा लेंगे तो आपको रिटर्न करने की वहां पे दिक्कत नहीं है, ना तो आपसे वो इंटरेस्ट मांगेंगे। तो आपके लिए भी ये मैनेजमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। सो फर्स्टली कंपनी सर्च करती है कि उसे सबसे सस्ता कहां से पैसा मिलेगा, जो रिक्वायरमेंट है फंड का उसको वो कहां से सस्ता पूरा में करेगा। एंड देन जब वो फंड को रेज कर लेगी तो दूसरा डिसीजन चालू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि आपने फंड को जितने बेहतर तरीके से फाइंड किया, सर्च किया, जिसके कारण आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम देना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये डिसाइड करना है वेयर टू इन्वेस्ट। तो सिंपल सा आंसर इसका है कि आप वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको रिटर्न मैक्सिमम मिले और रिस्क मिनिमम रहे। सो फाइनेंसिंग डिसीजन जितना बेटर होगा, इट इज अफेक्टेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना कम रहेगा तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के थ्रू जो आप रिटर्न पाएंगे उसमें से कुछ ही पार्ट आपको कैपिटल के रूप में पैसा देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रूप में पैसा देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि आपने 1 लाख रुपया कहीं से उधार लाया है और उस पे 5% का इंटरेस्ट रेट है। अब उस 1 लाख रुपये को आप कहां इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। दैट मींस अगर आप 1 लाख रुपए को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां आपको 20% इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसी 20% जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसी में से आप 5% पैसा दे देंगे जहां से आपने कैपिटल रेज किया है। दैट मींस 15% का आपको बेनिफिट होगा। तो ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीप एंड बेस्ट सोर्स आप फाइंड कर पाते हैं या नहीं फाइंड कर पाते हैं। जितना चीप रहेगा आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा सेव होगा। दैट मींस इन्वेस्टमेंट डिसीजन उतना ही बेटर होगा। तो आप देख रहे हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोथ आर इंटर रिलेटेड। एंड आगे चलेंगे डिविडेंड डिसीजन, तो ये भी इंटर रिलेटेड है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के थ्रू जितना प्रॉफिट आपने अर्न किया है, जितना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जितना बेटर होगा उतना ही प्रॉफिट आप ज्यादा अर्न करेंगे। अब प्रॉफिट ज्यादा अर्न हुआ है तो ऑब्वियसली आप डिविडेंड ज्यादा पे करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा पे करेंगे। सो दिस ऑल डिसीजंस आर इंटर रिलेटेड: फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अगर एक भी डिसीजन आपने गलत ले लिया, आपने मिस्टेकली कहीं मिस्टेक आपने कर दिया, तो उसका इंपैक्ट आपके आगे वाले डिसीजन में भी देखने को मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छा नहीं लिया तो आपको प्रॉफिट अर्न अच्छा नहीं होगा, तो आप डिविडेंड नहीं दे पाएंगे ज्यादा, क्योंकि आपकी कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। So these all decisions are interrelated. And the next topic, I'm going to discuss time value of money. Very important concept, time value of money. Every person wants to hold the cash. हर कोई कैश को होल्ड करना चाहता है बिकॉज कैपिटल एप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव।
आपके पास कैश अवेलेबिलिटी है, कैश आपके पास अवेलेबल है, तो उसको आप कहीं इन्वेस्ट करके कैपिटल को आप अपने अप्रिशिएट कर पाएंगे। बट अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, आपने किसी को ऑन क्रेडिट बेसिस पे दे दिया है कैश, तो आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो आप कैपिटल अप्रिशिएशन नहीं कर पाएंगे। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट अ सम ऑफ मनी is worth more now than the same sum of money in the future. सिंपल एक लेमन एग्जांपल लेते हैं कि आप देखेंगे कि पहले आपको 5 रुपीज में अच्छा बिस्किट्स मिल जाता था, बिस्किट्स का पैकेट अच्छा मिल जाता था आपको 5 रुपीज में, लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे कि 5 रुपीज में आपको किसी तरह का कोई भी बिस्किट्स का अच्छा पैकेट नहीं मिल पा रहा है। दैट मीन्स पहले जितना सस्ता था सामान, आज के डेट में वो उतना ही महंगा हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन। करेंसी का वैल्यू डिक्रीज हुआ है और गुड्स सर्विसेज कॉस्टली हो चुके हैं। So the principle of the time value of money means that it can grow only through investing. So a delayed investment is a lost opportunity. सिंपली आपके पास अगर अभी पैसा रहता तो आप उसको इन्वेस्ट करते और इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न कमा लेते हैं, तो जो आगे इन्फ्लेशन के कारण आपके करेंसी का वैल्यू को जो डैमेज करेगा, वो आपने रिटर्न के थ्रू कैपिटल अप्रिशिएट करके सेव कर लिया। अगर आपके पास आज के डेट में पैसे नहीं है, आप किसी दूसरे आदमी को दिए हुए हैं, तो वो पैसा आपको रिटर्न इंटरेस्ट के साथ रिटर्न नहीं करेगा। जस्ट लाइक डेटर्स, डेटर को आप देते हैं तो आप 2 महीने या 3 महीने के लिए उधार देते हैं, तो वहां से पैसा आपको रिकवरी अगर नहीं होता है तो दैट मीन्स वो आपका कैश वहां पे लॉकिंग पीरियड में चला गया और उससे जो आप इंटरेस्ट कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए एवरी पर्सन वांट टू होल्ड कैश एट प्रेजेंट, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी को लैप्स नहीं करना चाहता है, अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहता है। थर्ड पॉइंट इज द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर्स द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स फ्यूचर वैल्यू, द अमाउंट इट कैन अर्न एंड द टाइम फ्रेम। फॉर सेविंग अकाउंट्स द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स एज वेल। Inflation has a negative impact on the time value of money because your purchasing power decreases as price rise. I've already discussed just previous. The time value of money or time preference for money is one of the central idea is finance. Money has a time value because of the following reasons. First, individuals generally prefer current consumptions. Second one is an investor can profitably employ a rupee received today to give him a higher value to be received tomorrow. Third point is future is uncertain. फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होती है, इसीलिए वो प्रेजेंट को ज्यादा प्रेफर करता है रादर फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज inflationary pressures make the money received in future of lesser purchasing power। जो अभी हमने आपको बात बताई कि आप फ्यूचर में पैसे लेने से ज्यादा बेटर फील करेंगे कि आप अभी प्रेजेंट में पैसा रखें, क्योंकि आप प्रेजेंट में रखेंगे तो आपके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करके एड ऑन कर सकते हैं प्रॉफिट से। लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं पैसा है, फ्यूचर में आएगा, दैट मींस कि आप अपॉर्चुनिटी को लॉस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपका लॉस्ट हो रहा है। So there is preference of having money at present than at a future point of time. This automatically means that a person will have to pay in future more for a rupee received today. A person may prefer to accept less today for a rupee to be received in future. So present value, future value and annuity. यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 3 कंपोनेंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू आपको क्या बताएगा? तो आपको बताएगा कि फ्यूचर में आपको सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 1 लाख रुपया आपको मिलेगा
3 साल में। अगर कोई आपसे ऐसा बोल रहा है कि आपको 1 लाख रुपया 3 साल में मिलेगा और 10% इंटरेस्ट रेट के साथ आपको वो मिलेगा, तो आज के डेट में हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू हमारा अभी का क्या होगा, जो 3 साल में वो 1 लाख रुपया बन जाएगा, मेरा क्रिएट हो जाएगा उतना परसेंटेज पे, तो वो हमें प्रेजेंट वैल्यू बताएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग but how much the future sum of money worth today. It is one of the important concepts in finance and it is a basis for a stock pricing, bond pricing, financial modeling, banking and insurance, etc. Present value provides us with an estimated amount to be spent today to have an investment worth a certain amount of money at a specific point in the future. Present value is also called a discounted value. It is an indicator for investors that whatever money they will receive today can earn a return in the future. The formula for calculating PV is shown below, that PV present value is equal to future cash flow divided by 1 plus R पे power n. Here CF is future cash flow, R is a discounted rate of return and n is the number of periods or years. So इस फॉर्मूला के बेस पे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्यूचर कैश फ्लो आप 1 लाख, अभी जो हमने जस्ट एग्जांपल दिया कि 1 लाख रुपया आपको 3 सालों में हो जाएगा 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो आपका अभी प्रेजेंट में कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू अभी क्या होगा। तो आप फ्यूचर कैश फ्लो पर 1 लाख रुपीज रख देंगे डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%। 10% को हम 0.1 भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट पे in that means number of years, that means 3 years in this example. So it is easily calculated to present value of any future cash flow. So future value, second one is future value is the amount of money that will grow over a period of time with simple or compounded interest. It is one of the most important concepts of finance and it is based on the time value of money. Investors use this method to know what will be the future value of their investment after a certain period of time, calculates based on the assumed growth rate. So future value basically tell us how much money you will get in any sort of investment in the coming future. So present value में आपने देखा कि आपको फ्यूचर में उतना पैसा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रहेगा, 3 साल के लिए आपको देना होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा। एंड फ्यूचर वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का जस्ट उल्टा है, वाइस वर्सा, कि आज के डेट में अगर आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको फ्यूचर में कितना अमाउंट मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू उसका कितना होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर पावर n. Here PV is present value, FV is future value and R is the rate of return and n is the number of period of year. So the basic assumptions or basic terminology used in annuity are, annuities are insurance contract that promise to pay you regular income immediately or in the future. A deferred annuity has an accumulation phase followed by a disbursement phase. An immediate annuity converts a lump sum into cash flow from day one. You can buy an annuity with either a lump sum or a series of payments contributed over time. Annuities come
in three main varieties: fixed, variable, and indexed, each with its own level of risk and payout potential. The income you receive from an annuity is typically taxed at regular income tax rates, not long-term capital gain rates, which are usually lower. So basic factors influencing long-term financial decisions. Here two factors are very important. First is called external factor and second is called internal factor. External factor means those factors which are not controllable by the management. And internal factor are those factors which is controllable by the management, the effort of management. So external factor में first है state of economy, that is phase of trade cycle. A state of economy means आरबीआई के थ्रू जो भी डिसीजन लिया जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बैंक रेट क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये सब जो मैटर करता है कि आपका फाइनेंसिंग डिसीजन उससे अफेक्टेड होगा. लाइक अगर बैंक रेट हाई कर देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आपको बाहर में लोन कॉस्टली हो जाएगा, लोन लेना महंगा हो जाएगा. देन उस सिचुएशन में आप डेट कैपिटल को फॉलो नहीं करेंगे, आप इक्विटी कैपिटल की ओर मूव करेंगे, क्योंकि डेट कैपिटल दैट मींस डिवेंचर या लोन के थ्रू जब आप पैसा लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करना होगा. तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी एक फैक्टर है जो कि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करता है. द सेकंड वन इज institutional structures of capital markets. Capital market are those market where long term securities are traded, like equity, bond, debenture, etc. Either it is developed or undeveloped. Third one is a state regulation in financing, debt equity norms, dividend payment restrictions, etc. Taxation policy, it is very important factor influencing long term financial decision. Taxation rate जितना हाई होगा उतना फाइनेंसिंग डिसीजन आपका क्रूशियल हो जाएगा, क्रूशियल डिसीजन लेना होगा, आपको टफ डिसीजन लेना होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर इन टर्म ऑफ सेफ्टी, liquidity and profitability. Next one is lending policy of financial institutions. These all factors are affect to long term financing decision. So एक फाइनेंस मैनेजर इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है, जो कि एक्सटर्नल है. और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे कंट्रोल नहीं है, मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है. आप स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आरबीआई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू जो भी डिसीजन लिया गया है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा. सो इंटरनल फैक्टर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे कंपनी का कमांड होता है, जिसको वो कंट्रोल कर सकता है. These are first nature of business. बिजनेस का नेचर क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स है. तो आप ट्रेडिंग साइकिल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं. सेकंड वन इज साइज ऑफ बिजनेस. बिजनेस का साइज बड़ा है, स्मॉल है, मीडियम है, डिपेंड करेगा कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करता है. स्मॉल साइज बिजनेस है, दैट मींस आपको फाइनेंसिंग डिसीजन लेने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फंड की रिक्वायरमेंट चूंकि ज्यादा नहीं रहती है. मीडियम एंड लार्ज कंपनी में आप देखेंगे कि वहां फंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो कैपिटल रेज करने से रिलेटेड आपको डिसीजन लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है. एज ऑफ द फर्म का एज मींस कि क्या उसका साइकिल है, ट्रेड साइकिल क्या है, क्या सीजनल बिजनेस है या फिर ये लॉन्ग टर्म चलेगा, ये डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज ओनरशिप स्ट्रक्चर.
ओनरशिप स्ट्रक्चर दैट मींस इक्विटी कितना है, डेट कैपिटल कितना है, दोनों का मिक्सअप कितना है, कितना प्रोपोर्शनेट दोनों का आया है, ये डिपेंड करेगा कि आपका फाइनेंसिंग डिसीजन किस ओर मूव करेगा। आप इक्विटी की तरफ मूव करेंगे या डेट कैपिटल। ऑलरेडी अगर पहले से डेट कैपिटल इन्वॉल्व है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो वहां आप ज्यादा डेट कैपिटल को प्रायोरिटी नहीं देंगे, बल्कि आपको इक्विटी कैपिटल की ओर मूव करना होगा। एसेट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, liquidity position of the firm, liquidity position, expected returns, cost and risk, probabilities of regular and steady earnings. Next one is attitude of management. Management का क्या attitude है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होगा। अगर रिस्क लेना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा वो डेट कैपिटल इशू करेगा, लिवरेज को हाई करेगा। अगर रिस्क नहीं लेना चाहता है तो इक्विटी के थ्रू कैपिटल को रेज करेगा। तो ये सारी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स के रूप में आती हैं, जो कि काफी इन्फ्लुएंस करता है आपके फाइनेंशियल डिसीजन। सो नेक्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट मींस हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कैपिटल लाइक इक्विटी, डिवेंचर, बॉन्ड्स, फॉर्मूलाज होंगे, कंप्यूटेशनल पार्ट होगा। तो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।